Hi, this is Vivek Oberoi. Wishing all the viewers of Bollywood Masala all the very best. Good looks ho ya na ho doesn't matter. Money, if he doesn't earn, I'll try and earn. So humor is something that he has to be born with. Okay. So humor, yeah. Yeah, so far so good. I think we've got a good response from our promo, and today we have a good opportunity with to tie up with Reliance Media. I think it's a great and fun app. People will have a lot more fun making her laugh. Though it's very easy, guys. So if you were not in that TV or not in online, I'm sure she'll probably laugh and giggle all the time. But yeah, thank you Reliance for having this tie-up. I think it's a great way for us to interact with our fans and people who like our film. So yeah, keep हंसाविंग परिणीति में. All the best. Make you laugh. To make me laugh. It's more important. अरे wow, तो I wish girls come online. Please make me laugh. I would be happy to see the girls try and make me laugh. आप कुछ सुनाइए, कुछ करके दिखाइए. अभी मैं हंस रहा हूँ आपको देख के. It's a myth कि हंसता नहीं है, बहुत हंसता है and बहुत आसानी से हंसता है and बहुत देर तक हंसता है. So we don't need an app for him. एक ऐसा ऐप है जिससे ट्रैफिक सारा निकल जाए, उड़ जाए सारी गाड़ियाँ, ताकि मैं फटाफट 10 मिनट में आ जाऊँ. ऐसा ऐप आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक. हम लोग सब फिर टाइम पे पहुँचेंगे हर जगह. ये कौन सा ऐप है कि हम आप बताएं कि हम इस इवेंट के लिए आए हैं और you want to still talk about the timings? I think you guys should be in present and not in the past. So everybody gets late. It's Bombay. We're waiting here. The timing, sometimes we have other commitments and we can't make it on time. So apologies, but I'm sure I think it's quite unfair that you don't want to talk about the app, but it's up to you. Just to answer that, हम लोग काफ़ी लेट तक काम कर रहे थे कल रात को 3 बजे तक. एंड हम लोग इससे पहले भी काम करके आए हैं, तो अगर हम थोड़े से लेट थे तो आप हमें माफ़ कर सकते हैं. साइंटिस्ट मीता तो इम्प्रेस मुझसे होती नहीं है. साइंटिस्ट मीता अपसेट ऑन ऑल द टाइम. साइंटिस्ट मीता को बहुत मुश्किल है इम्प्रेस करना. परिणीति आई थिंक इज इजी टू मेक लाफ एंड कीप हैप्पी. His sense of humor is kick-ass actually. There's hardly a joke that I don't laugh at. Whatever he says, वो अपनी low volume में मतलब बिना ज़्यादा मुंह खोले जल्दी से बोल देता है. And it's always a deadpan face. हर किसी की वॉल्यूम लो है, तो that's unfair. बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है. टीवीज, मतलब मैं अपना घर का फ्रिज भी पूरी रिसर्च करके खरीदती हूँ. तो मैं अगर मुझे छूट दे दी गई तो मैं सब कुछ खरीद लूंगी. मैं 3 पे नहीं रुकूंगी. I think it's become as odd as it sounds. It's like headphones. I think I like. It's not a gadget which is very fancy, but I think headphones are great input. I've got new ones which you can use underwater, and you can also use while you're waterproof. Quite excited about my new gadget which I got, which you can use underwater and while you're running, swimming, playing any sport. I love, like I just said, I love electronic stores. Really, I really love them. My biggest expense in life is electronics actually. So I really like this store. I think it has a variety that others don't have. And again, thank you for having us here. Really, I hope we can shop a lot from you. Thank you. I think हमारी age group के लोग सारे legally allowed to vote हैं. I think everybody needs to vote, because if you don't vote, you don't have the right to complain when a decision is taken on who wins. I don't want to name my favorite candidate. I have it in my head, but I will not say it. I just hope that whoever comes brings in a little more cleanliness and safety in this country, because I think that's what we need. That's what I personally crave on roads, whether it's traffic situations, cleanliness, hygiene, etc. I think we lack that, and we always enjoy that when we go out of India. So I think we need to bring that in our country also, and I hope whoever wins ensures that our country is much greener and cleaner. Really, really. Thank you.
Yes, I think we all should vote. You know, if you don't vote, you can't complain. You know, I think it's sad that it's not in our culture that our parents don't really push us at 18. You know, me being honest, I think in Delhi, it's not a priority for our parents to push us कि बेटा जाके vote करो. It's more about कि college जाओ, पढ़ाई करो, or what college you're getting into. So I think it has to be inculcated in us as a culture to go and vote, and it cannot happen overnight. Of course, there's so much to change. But it's odd and immature for us to pick one thing कि ये change कर दो तो country will become better. I think there are a lot of elements to it. It's not an easy job, but voting is the beginning for it. If we don't vote, we can't complain. नहीं एक्चुअली इस फिल्म में ही नहीं आई थिंक अब मेरा एंडेवर है कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूं क्योंकि हमेशा मुझे ओवरवेट एक्ट्रेसेस कैटेगरी में डाला जाता था मेरे पहले साल में तो अब मेरा दूसरा साल अभी ख़त्म हुआ है एंड मैं चाहती हूं कि अब मैं ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूं मैं ज़्यादा अच्छी दिखूं स्क्रीन पर आई थिंक पहले 2-3 रोल्स में मैं फिल्म में भी थोड़ी ओवरवेट लगती थी लेकिन अब आपको वो कंप्लेन नहीं होगा और अब मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा उसमें कोशिश जारी है मैं इनसे सीख रहा हूँ टिप्स लेना कि कैसे वेट गेन करना है ये मुझसे टिप्स ले रही है कि कैसे वेट लूज करना है तो ये चल रहा है आजकल एक्चुअली लड़कों के लिए वैसा वेट गेन टाइप नहीं है आई हैव टू बिकम मोर मस्कुलर एंड बिगर सो अटेम्प्ट्स है अभी वर्कआउट का टाइम मिलता नहीं है पर वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मोर अग्रेसिव गाय ऑफ कोर्स मैंने उसका ट्रेलर देखा मैं तेरा हीरो मैं उसको फोन भी किया उस दिन जब निकला आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग इट्स वरुण's गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग एंड एक किस्म की उसकी सेंसिबिलिटी इसके लिए एकदम एप्ट है आई थिंक जो वो कर रहा है वो इस किस्म की कॉमेडी मैं नहीं कर सकता तो आई थिंक इट्स अमेजिंग हिज जॉनर इज वेरी यूनिक एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम आई थिंक इट बी अ फन फिल्म एक किस्म का कंपटीशन अजीब है तीनों बहुत अलग पिक्चर हैं हाईवे मैं तेरा हीरो और हमारी हंसी तो बसी तो कंपटीशन आपस में तो नहीं आई थिंक इन जनरल कंपटीशन इज वेरी हाई कोई भी जॉनर करे उसको हमें थोड़ा कन्विंसिंग भी करना पड़ता है तो हेंस आई वाज सेइंग आई थिंक वरुण ने जिस किस्म की कॉमेडी करी व्हिच इज सुपर्ब एंड ही इज डन आई थिंक ही इज रियली फनी एंड इज रियली कन्विंसिंग इन दैट सो इज आलिया एंड होपफुली वंस यू सी हंसी तो बसी एंड सो विल आई बी डिफरेंट एंड तो आपस में कंपटीशन तो नहीं आई थिंक वी आर वेरी क्लोज एंड स्टिल हैव दैट बॉन्ड नहीं एक्चुअली मेरा जब मैं पहले आई थी एंड सब मुझे बोलते थे कि यार तुम थोड़ी ओवरवेट हो लेकिन एंड अपने ड्रेसिंग के बारे में ख्याल नहीं करती हो एंड ऑल तो मुझे उस टाइम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे लगता था कि नहीं ठीक है जैसे भी मैं दिखती हूँ बस मैं एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए बट आई थिंक वो गलत है क्योंकि आप एन एक्ट्रेस हो हाँ 2 फिल्में 3 फिल्में में आप शायद अपनी एक्टिंग का कर लेंगे उसके बाद आई थिंक यू हैव टू लुक गुड एंड वो मेरी स्टुपिडिटी थी कि मैं ऐसे बात करती थी आई थिंक जो लोग जैसे अब तो मैं आपसे पर्सनली बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो तो मुझे सिर्फ फिल्मों के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो आई थिंक उन लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छी दिखूं मैं सिर्फ 25 साल की हूँ तो मतलब कोई रीज़न नहीं है कि मुझे ओवरवेट होना चाहिए तो आई थिंक आई एम यंग एंड आई थिंक आई शुड ड्रेस बेटर, लुक फिटर why not everybody is so fit so why not me so इसलिए अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि I become fitter so that I can look better on screen definitely and लोग मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कमेंट करते थे उनको ये नहीं पता कि मुझे कुछ फिट नहीं आता था तो मुझे जो मिलता था मैं पहन लेती थी उस टाइम अब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ आई होप 3-4-6-8 महीने में जब मैं बहुत फिट हो जाऊँगी तब फिर कोई नहीं बोलेगा एटलीस्ट एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं वाई नॉट अबाउट माई क्लोथ्स एंड लुक्स सो वही मेरा एम था ओवरवेट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में जो है उनका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ मी टू डू दैट दैट्स हर दिस थिंग आई थिंक सोनाक्षी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल I think I shouldn't comment on what she said. That's her thinking. And I also used to think like that a year ago. I also used to say क्या फ़र्क पड़ता है मेरा क्या साइज़ है बट वो मेरे थॉट में ओपिनियन में बदलाव आया है बट एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल इन वॉट दे आर आई थिंक सोनाक्षी लुक्स ग्रेट द वे शी इज़ आई डोंट थिंक शी इज़ ओवरवेट पर्सनली रियली so I think she looks beautiful there's nobody who has such a gorgeous face as Sonakshi so that's her thought I'm only talking about what I think मैं जैसे कि मैंने बताया मैं परेशान हो चुकी थी अबाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट टू वेयर स्लीवलेस नहीं पहन सकते ड्रेस नहीं पहन सकते ये दिख रहा है आज पेट बाहर निकल रहा है आज फेस मोटा लग रहा है तो मैं परेशान हो चुकी थी आई वाज लाइक क्यों मैं सोचूं ये सब इससे अच्छा पतले हो जाओ इट वाज जस्ट माय ओन इनर catharsis happened. The experience so far is great. I think I need to come back and shop. I'm genuinely want to check out that TV, man. Seriously. Okay, do not eye my TV. Yeah, I think it's a great platform. Yeah, we didn't have such stores when we were growing up in Delhi. I think it's a great store to come for one-stop shop for all your electronics. Yeah. And thank you, Reliance, for opening a store like this. That's Mr. Vinay Kamath.
the head of marketing. Can we have them on stage, please? Both of them. This team can give them a big round of applause and wish them all the best. 7 Feb. ये पिक्चर एग्जामिनिंग कमेटी में पास नहीं हुई, रिवाइजिंग कमेटी में पास नहीं हुई, फाइनली ट्राइब्यूनल में पास हुई। और ट्राइब्यूनल में बड़े जिम्मेदार लोग बैठते हैं जो इस पर्सपेक्टिव से फिल्म देखते हैं कि क्या इस फिल्म से किसी को तकलीफ पहुंचेगी। मेरा ये मानना है कि जो एसेंस ट्रेलर देखकर मुझे दोबारा समझ में आया है कि इसकी नीयत यह है कि वो कड़वाहट दूर करे, दूरियां कम करे, फासले दिलों के कम करे। तो मेरा तो दावा है कि इस फिल्म से वही होगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, झंझोड़ेगी लोगों को पिक्चर, वो लोगों को तकलीफ होगी जो अपनी दुकान चला रहे हैं, मजहब के नाम पे टेरर कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक एनी सेन peace loving person will have any objection to this film. मैं ये कहना चाहूँगा कि भट्ट साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है। वो बहुत रिसर्च करके फिल्म बनाई है। उतना इस्लाम मैं भी नहीं जानता हूँ अगर सच कहूँ तो, पर जब मैंने ये फिल्म की और बहुत डीप जाके देखा तो इट वाज वंडरफुल कि एक ACP ऑनेस्ट कॉप जो इस्लाम को पढ़ के इतना जान के, मेन इस फिल्म से मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है वो अगर पढ़ ले कुरान को तर्जुमे के साथ, मायनों के साथ, तो कुरान को समझ के फॉलो करने वाला टेररिस्ट कभी हो ही नहीं सकता है। तो मैंने इस फिल्म से यही एक है कि जो भी मोहसिन भाई ने भी कहा था कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद एक लड़का भी जो यंग अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के किसी को ना उड़ाए और उसका इरादा बदल जाए ये फिल्म देख के, तो हमारी जीत हो गई और हमारा काम हो गया। थैंक यू। मुझे याद है कि द फर्स्ट टाइम आई स्पोक अबाउट व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिहाद इज, एंड आई एम सेइंग कि मेरी समझ, एंड आई नो माय समझ इज लिमिटेड टू माय अंडरस्टैंडिंग, एंड देयर मस्ट बी सो मेनी पीपल हु नो मच मोर देन व्हाट आई अंडरस्टैंड। There was a book of the Prophet in English, which I read, which said that somebody asked the Prophet, "What is the most blessed struggle? Which is the highest form of jihad?" And the Prophet said, "To tell the truth to an oppressive ruler." जालिम बादशाह को उसका सही चेहरा दिखाना उससे बड़ा जिहाद नहीं है। So that power center, any power center, anywhere where there is a tyrant in any form, showing him his real face is jihad. This is what the Prophet's words were, which kind of made inroads into my heart, and that's what I understand. The real jihad is to confront the tyrant with his ugliness, so that that ugliness makes him stop in his tracks and correct himself. जिहाद एक्चुअली जिहाद का मतलब इंग्लिश में जिहाद कहते हैं स्ट्रगल को। जब हम किसी अच्छी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं
तो उसे हम जिहाद कहते हैं। पर जहाँ पर जैसे हमारी फिल्म में दिखाया है, जहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है या फिर इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, उसको हम जिहाद तो नहीं कह सकते हैं। तो जिहाद बेसिकली अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए है, अच्छी चीज़ों के लिए लड़ने को जिहाद कहते हैं। जिहाद मेरे हिसाब से जिहाद नॉट मेरे हिसाब से आई मीन इस्लाम के हिसाब से भी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिहाद मैं अगर करूँगा तो जिहाद इज़ टू फाइट योर इनसाइड डेविल, यू नो, अपने अंदर का जो शैतान है, जो बुरा आदमी है, उसको फाइट करो, उसे रोको, यू नो। मेरे हिसाब से वो जिहाद है, ताकि अपने बुरे आदमी को, शैतान को अंदर से मारो और अच्छे इंसान को निकालो, और मेरे हिसाब से यही जिहाद जी। इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम जैसे इमरान खान है। यस, आई एम अ मुस्लिम बॉय इन द फिल्म। मैं और अर्जुमन जो मेरी बीवी बनी, पत्नी बनी इस पिक्चर में, हम लोग विक्टिम हैं अपनी ही कम्युनिटी के, हम अपने ही लोग विक्टिम बनते हैं। देखिए, यही इसमें बताया जा रहा है इस फिल्म में कि जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म, कहाँ से आया ये टेररिज्म, कौन करता है शुरुआत इसकी। कोई एक कम्युनिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक ईवल, एक डेविल है सोसाइटी में, एक ऐसा भूत जिसे कह सकते हैं, जो अनसीन है, जो हमें दिखता नहीं है। ये वो जिहाद है। जिहाद उससे लड़ने के लिए है ये फिल्म में टोटली वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ईवल एंड हॉरर, टू किल पीपल। जो लोगों को मारते हैं, ख़त्म करते हैं और खुश होते हैं एक राक्षस की तरह। सो ये फिल्म है जिहाद उनके खिलाफ। सो ये है, और ये इसमें हम लोग विक्टिम है, जैसे मैं और अर्जुमन इस फिल्म में। बाकी जो कहानी आप देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता इस फिल्म में। सब ने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही परफेक्ट, अच्छी मेहनत की फिल्म में, फ्रॉम द डायरेक्टर से लेकर टू द स्पॉट बॉय ऑफ द फिल्म। हम सब की बहुत मेहनत इस पिक्चर में, बहुत दिल से बनाई है, जैसे भट्ट साहब ने बोला, मुकेश सर ने, महेश सर ने। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दिस इज अ फिल्म। पूरी सृष्टि कर्म प्रधान है, और कर्म का जो सबक है, जो लेसन है, आवाम तक धर्म ग्रंथ पहुंचाते हैं। और जब भी किसी धर्म के धर्म ग्रंथ से कोई शब्द निकलता है जो कर्म की व्याख्या कर रहा हो, हर धर्म के जो पंडे हैं, मौलाना हैं, वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, और फिर उनके इंटरप्रिटेशन के साथ कर्म को कर्म में बदल जाता है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व का ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं, उसी का नतीजा है इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान में जिहाद के बारे में वर्णन किया गया है, और जिहाद का इंटरप्रिटेशन जो मौलाना कर रहे हैं आवाम के साथ उन्हें बहकाने के लिए, उस पर ये फिल्म है। और मेरे ख्याल से इस तरह की फिल्मों की आज बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर इस फिल्म की बहुत ज़रूरत थी, और इसे मोहसिन अली खान साहब ने बनाया, हसनैन साहब ने डायरेक्ट किया, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुकेश भट्ट जी और महेश भट्ट जी ने इस फिल्म को आवाम के सामने लाने की कोशिश किया है। धन्यवाद। एक्चुअली ये फिल्म मुझे मिली इकराम अख्तर साहब की वजह से। इन्होंने एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस देखी और इनको बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हसनैन साहब से, तो इनकी वजह से ये फिल्म मैंने की है। और ये हमारे राइटर हैं फिल्म के, तो डेफिनेटली ही नोज़ द बेस्ट। मोहसिन भाई ने जब मुझसे बोला कि ये फिल्म लिखनी है आपको, तो उन्होंने सबसे पहले बात यही कही कि आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पे सवाल उठ रहे हैं, इस्लाम पे सवाल उठ रहे हैं, उसका एक जवाब देना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो ये एक जवाब है, क्योंकि कहीं भी ब्लास्ट होता है तो हम मुस्लिम बैठ के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यार हम लोग वैसे नहीं हैं, ये कोई और लोग हैं जो कर रहे हैं। हम शर्मिंदा होते हैं, करता कोई और है। तो हमने सोचा कि इस शर्मिंदगी को मिटा दिया जाए, और इसमें पिक्चर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमारे एक हिंदू दोस्त हैं, पंडित जी हैं, त्रिपाठी साहब। उन्होंने ये पिक्चर देखने के बाद मुझे इसका एक अलग ही पहलू बताया जो मुझे खुद नहीं पता था। उन्होंने बोला कि इकराम भाई, मैं आज तक ये समझता था कि 99% मुसलमान जो हैं वो इस्लाम को जानते हैं और गलत,
लेकिन ये पिक्चर देख के पता चला कि यार मुसलमान तो जानते नहीं है इस्लाम क्या है। उसके बाद अगर वो गलत हैं या उनको गलत तरीके से समझाई जा रही हैं चीज़ें तो एकदम राइट है ये। तो ये पिक्चर सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम ही पसंद करेंगे, इसको जो है जो और दूसरी कौम के और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे। और जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद या किसी और की बात, तो हमने किसी की संवेदना या किसी के धर्म को नहीं हमने वो किया है। हमने तो ये बताया है कि ये सब देखो धर्म के ठेकेदार हैं, ये सब ये गलतियाँ करते रहेंगे। आम जनता को ये समझना है और लोगों को ये समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोग जो हैं मौलाना या जो भी धर्म के ठेकेदार हैं वो इसको गलत तरीके से वो कर रहे हैं। और संजय साहब ने इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं इसके अंदर। मतलब बस मैं जो समझता हूँ जिहाद के बारे में, इस्लाम के बारे में, या जो हिंदुस्तान में इस वक्त हालात हैं उनके बारे में, वो सब मैंने कोशिश की है अपने डायलॉग के थ्रू फिल्म में रखने की। तो मुझे लगता है कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं हसनैन हैदराबाद वाले को सलाम करता हूं कि उसने जुर्रत करके एक ऐसी फिल्म बनाई जिसकी ज़रूरत है मुल्क को, इंसानियत को इसकी ज़रूरत है। ये जो मिसकंसेप्शन इस्लाम को लेकर है, जिहाद लफ्ज़ को जो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, उसको सही तरह एक सही कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया है। ये आवाम की फिल्म है, कोई इंटेलेक्चुअल क्लास या कोई आर्ट हाउस की फिल्म नहीं है। ये हमारे आम आदमी के लिए है जो शिकार होते हैं ऐसे अक्सर उन ताकतों के हाथ वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो खून खराबा करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ऊपर हमारे ट्राइब्यूनल ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने जो फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे रहे थे उसको यूए दिया है ताकि हमारे यंगस्टर्स ये फिल्म आई फील दिस फिल्म विल ब्रिज द डिस्टेंसेस, remove misconceptions that exist about the faith called Islam. भाई विक्रम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी सेंसेशनल फिल्म मैंने जैसा इन्होंने मुझे बताया है, मेरी इनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन एज ए पर्सन ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन इंडियन इंडस्ट्री। और मैं चाहता हूँ इनकी फिल्म बहुत कामयाब हो और यारब पे पूरी तरह रब की मेहर हो। बहुत टफ रही है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि सख्त रास्तों पे भी आसान ये सफ़र लगता है और ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरी माँ की दुआओं से रास्ते आसान होते गए और अल्लाह ने मुझे हमेशा कोई ना कोई मुकाम पे एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया है, एक ऐसा मिरेकल करके दिखाया है कि क्या कहूँ अल्लाह ताला का। ये सडनली बिग बॉस में भेज दिया और कहते हैं ना कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था और आपने ख़रीद के अनमोल बना दिया। लोगों के प्यार ने आज एक अलग ही हाई मुझे दिया है और ये दिया है कि वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव यू, कि तुम में वो बात है जो तुम कहते हो। और इससे बड़ी खुशी, इन लोगों का दिल जीतने से बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान की आवाम मुझसे इतना प्यार करती है, दुनिया के सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। यारब आई प्ले अ सिंपल इंडियन मुस्लिम गर्ल जिसका नाम साइमा है एंड शी इज़ बीइंग पेयर्ड विद एजाज खान एंड इस लड़की का ये है कि शी इज़ टॉर्न बिटवीन हर ब्रदर एंड हर लव। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो मैं पूरी पिक्चर बता दूँगी, तो इसलिए इट्स माय प्रिविलेज एक्चुअली कि आपने इतना मेहनत किया, इन लोगों ने ये तो मुझे जानने नहीं लगा कि सचिन भाव, संगीता जी नमस्कार। एंड आप सबको, आप जो यहाँ पर सामने बैठे हैं, जो साइड पर वहाँ खड़े हैं, नमस्कार आप सबको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उधर पीछे भी जरा मुझे हाथ दिखा दीजिए। नमस्ते। और साइड के उस तरफ जो खड़े हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही सुंदर दिन है, भारत का 65वां गणतंत्र दिवस। आप सबको बधाई हो। आई होप कि आपने आज एक अच्छी छुट्टी भी मनाई, कुछ अपने देश को कुछ थैंक यू भी कर दिया दिल से। आज मुंबई में पहली बार परेड भी हुई, किसी ने देखी? कोई गया? अरे वाह, आपने देखा। मैं तो देखने के ख्वाब ही देखती रही।
मैंने मगर टेलीविज़न पर जो दिल्ली का परेड हो रहा था वो देख लिया। तो बहुत ही खूबसूरत दिन है और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ली पर फेस्टिवल चल रहा है इतने दिनों से। आज मैंने सुना है आज आखिरी दिन है, आज हाँ, ओहो, आज आखिरी दिन है। मगर चलिए, बहुत ही खूबसूरत दिन पर इसकी फिनिशिंग हो रही है। सचिन भाव को मैं अभिनंदन करूंगी कि इन्होंने ये श्री संकल्प प्रतिष्ठान, इसके द्वारा ये वर्ली फेस्टिवल शुरू किया। मैंने सुना है 4 साल हो गए हैं और 2 साल से तो यहाँ पर वर्ली सी फेस्ट पर हो रहा है। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाव, क्योंकि आप यहाँ पर इतना रंग ला रहे हैं, इतना म्यूजिक ला रहे हैं, इतना कल्चर ला रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये भी सुना कि यहाँ पर कोई 10 NGOs के स्टॉल्स हैं और फिर कोई 10 और कोलीवाड़ा औरतों के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने ऑथेंटिक अपने घर से कुछ ऑथेंटिक डिशेस बनवाकर वो लेकर आई हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके स्टॉल्स पर ज़रूर जाइएगा और थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करिएगा, क्योंकि इनको बढ़ावा देना हमारा फर्ज बनता है। तो इन सब अच्छे कार्य के लिए आपको अभिनंदन, संगीता जी को अभिनंदन। I just wish Worli festival, which is bringing so much life, so much color into our part of the city, I wish it great success and even more success in the coming years. सचिन भाव, जैसे आपने इन 4 सालों किया, अगले 40 सालों तक ये फेस्टिवल और बढ़ाते जाइए और भी बड़ा करते जाइए और NGOs को सपोर्ट करिए और लेडीज को। एंड जूही जी को सुन के एवरीबॉडी वाज लाइक वाह, से बोल दिया हमारे दोस्त को समुद्र से भी निकल गए यहाँ पे। और there is almost more than 2,000 and now for yeah, I'd like to thank you everyone over here, Sachin Bhau, ma'am, sir, Sunil uncle. Good evening to all of you. It's really an honor and a pleasure to be here. It's my first year here. A couple of days ago, Salman Bhai was here. He was here for the opening day, and he told me that I must come here and lend support to Sachin Bhau because he's doing such incredible work, not just with this festival, but also for the entire area of Worli. And as you know, Salman Bhai is really into charity and supporting good people and good causes. I'm taking a leaf out of his book and also trying to do the same in my little way. Thank you, sir, for having me here. It's really an honor. As you requested, a special shout out to all the girls, all the ladies. Love you all. Thank you. Please go watch Jai Ho. It's a really incredible film. It's entertaining. It's a family film. It has a very, very strong message. Present Ravina ji with autograph appreciation. Ravina ji, I think I deserve a flower as well. पहली बात तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का बहुत 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 शुभकामनाएं एंड जय हिंद। पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगी और बहुत खुश हूँ मैं कि आज संगीता भाभी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आना ही पड़ेगा तुम्हें, और मैं बहुत उछल कूद के आई हूँ एंड आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम लखनऊ। सारे जानते ही हैं कि सचिन भाव और भाभी सिर्फ ये वर्ली फेस्टिवल नहीं, लेकिन इनका खुद का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए ये बच्चों के लिए काम करते हैं। मैं उनके साथ उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, कभी कभी बुला लेती हैं भाभी तो मैं चली जाती हूँ। और ये काम सिर्फ इनका ये नहीं कि चाहे हमारे बुजुर्ग हों या हमारी औरतों के लिए या हमारे बच्चों के लिए काम करें। मुझे ये बहुत बहुत खुशी है देख के कि इनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर भी है और उसको प्रमोट करने के लिए कहाँ से टैलेंट आप लोगों के लिए, इस वर्ली फेस्टिवल के लिए आप लोगों को देखने के लिए बुलाया गया है। फिदाइन साहब आए हैं ऑल द वे फ्रॉम द US और हम मुंबई वालों को, वर्ली वालों को फिदा करके चले जा रहे हैं। लेकिन यही एक टैलेंट नहीं है, ये पूरी रात ऐसे चलती रहेगी, ये सारे दिन जो हमारा फेस्टिवल चलता रहेगा ऐसे ही अलग अलग टैलेंट, ऐसा ही आर्ट कल्चर आप लोगों को ऐसे लाइव देखने मिलेगा।
ये ही बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। भाभी वेल डन, फुल सल्यूट, फुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बढ़िया रहा। एंड मैं इनको बोल रही थी मुझे सिर्फ एक दिन क्यों बुलाया है, मुझे तो रोज आके यहाँ सामने बैठ के तालियां मारनी है। क्यों, आप लोगों को क्या लग रहा है, हाँ या ना? चलो, तो हर साल ऐसा ही सक्सेसफुल रहे ये इवेंट, ऐसे ही आर्ट, कल्चर, टैलेंट आप लोग के सामने हम आए, आप लोगों को मिले, आप लोग हम सबको मिले, यही हमारे लिए बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट Shri your circle Pratistha. I remembered. I was going to say foundation, but I remembered. Shri Circle Pratistha. बहुत काम करते हैं ये लोग. And Bhabhi, I want you to say a few words as well, please. कैसे हैं आप लोग? यार हमारे यहाँ नहीं होता, मैं अंधेरी में रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं भी वर्ली शिफ्ट हो जाऊं। आप लोगों का इतना प्यार मिला है और आप लोगों के वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। मैं आप लोगों को कुछ दे तो नहीं सकता, बस दुआ कर सकता हूँ। आई कैन ओनली प्रेयर कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑलवेज बी इन गुड हेल्थ, और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Mr. Sachin.